گی اور جب سی این جی بند ہو جائے گی تو اس کے بعد لوگوں کے تاثرات کیا ہوں گے؟ کیا لوگ معاشی مسائل کا شکار تو نہیں ہو جائیں گے؟ اور جب معاشی مسائل کا شکار ہوں گے تو اس کے بعد کیا ری ایکشن آئے گا؟ راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جب سی این جی بند کر دی جائے گی اور اس کے بعد صورتحال کیا ہوگی عام لوگوں کی؟ دیکھیں، سب سے پہلے عام آدمی کو فرق یہ پڑے گا کہ بہت ساری گاڑیاں ایسی ہیں جو سی این جی کے علاوہ پیٹرول پہ چل نہیں سکتی، تو وہ تو گھروں پہ کھڑی ہو جائیں گی، اور جو لوگ پیٹرول پہ چلائے گا اس میں تنخواہ دار طبقہ یا تاجر طبقہ یا مڈل کلاس ہے، پیٹرول کی قیمت جو ہے سی این جی سے ڈبل ہے، اس کی آمدنی اسی طرح ہوگی اور اس کے خرچ زیادہ بڑھ جائے گا، تو یا وہ گاڑی گھر میں کھڑی کرے گا یا جو ہے وہ اپنے کھانے پینے کو کم کرے گا، اور جو لوگ بس یا ویگن پہ سفر کرتے ہیں اس کے کرائے جو ہیں وہ 3 گنا جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے۔ تو یہ مہنگائی کا ایک ایسا طوفان آئے گا جس سے کھانے پینے کی اشیاء سمیت ہر چیز اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ وہ ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمارے پاس گیس ہوگی نہیں تو آپ کو کہاں سے دیں گے؟ یہ بات تو حکومت کی صحیح ہے اگر گیس نہیں ہوگی، لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ گیس ہے۔ ہم نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا تھا کہ جو گیس غلط طریقے سے تقسیم ہو رہی ہے، جو چوری ہو رہی ہے، جو چند سرمایہ داروں کو دی جا رہی ہے، وہ ختم ہو کے انصاف کا بول والا ہوگا۔ اور جب گورنمنٹ آئی تو ہمیں پہلے دن کہا بھی یہی گیا کہ یہ اسٹیپ لیے جائیں گے، لیکن ابھی تک اس چوری پہ تھوڑی بہت مہم چلی ہے، لیکن جو بڑے سرمایہ دار تھے جن کو اس وقت بھی گیس انلیگل غیر قانوناً دی جا رہی تھی، ان کو ابھی بھی دی جا رہی ہے۔ تو اگر گیس معاہدوں کے مطابق، قانون کے مطابق تقسیم ہو، اس کے بعد اگر گیس کی کمی ہو تو ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہمارے بھی گھر ہیں، پھر سب کا حق ہے اس میں برابر حصہ تکلیف اٹھائے گا۔ لیکن اگر گیس صرف انہی لوگوں کو ملتی رہے جو گیس خریدنے کی سخت رکھتے ہیں یا فیصلہ کرنے والوں پہ اپنا اثر انداز ہو کے کام کر ہمارے سکتے ہیں۔ پاس کیا آپشن ہے؟ ایک تو آپشن یہ ہے کہ ہم فیکٹریز چلا لیں، سردیوں میں گھروں کو گیس دے دیں تاکہ لوگ اپنے ہیٹرز جلا کے آرام سے زندگی گزار لیں، یا پھر سی این جی پہ خرچ کریں۔ اب اگر سی این جی کو دیں گے، سی این جی اسٹیشنز کو دیں گے تو لوگوں کے چولہے بجھ جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ فیکٹریز بند ہو جائیں گی، تو سی این جی کہاں سے ڈلوائیں گے لوگ؟ کہاں سے پیسے لے کے آئیں گے؟ جی بالکل، آپ سیکھیں نا، 2009 تک یہ پرابلم نہیں تھا۔ یہ پرابلم تب شروع ہوا کہ بعض ہمارے ملک میں 60% ادارے ایسے ہیں جن کو 9 مہینے گیس کی سپلائی کا معاہدہ ہے اور ان کو گیس سستی دی جاتی ہے کہ باقی 3 مہینے وہ فرنس آئل سے کام کریں گے۔ تو 2009 میں جب یہ کرپشن شروع ہوئی تو ان لوگوں کو معاہدوں کے برعکس گیس دینی شروع کی۔ اگر ابھی بھی اسی معاہدے کے برعکس دیں گے تو لازمی طور پہ پھر شہر کی گیس کا پریشر کم کریں گے۔ جب شہر کی گیس کا پریشر کم کریں گے تو گھریلو سارے تندور، سی این جی سب کو تکلیف ہوگی۔ اگر معاہدوں پہ عمل درآمد ہوگا تو میں اعلان کہتا ہوں کہ تمام لوگ جو ہیں 80% جو ہے گیس لے سکیں گے۔ ٹھیک، یہ بتائیے گا سر، اسی جگہ پہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی، ان سب لوگوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن آج یہ لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہیں، کوئی مسئلہ آپ کی حکومت حل نہیں کر سکی۔ عوام صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سے میں میرے شہر کے لوگ، میں آپ کا شکریہ ادا کر دوں کہ آپ نے میرے حلقے سے NA55 میں آپ مجھے موقع دیا۔ رہا یہ سوال کہ جب مسلم لیگ نون کو جب میاں نواز شریف کے نام پر جب عوام نے ووٹ دی، جو ان کی توقعات تھیں وہ نہ صرف کہ مجھے پتہ ہے اور آپ کو پتہ ہے، میرے قائد میاں نواز شریف سے کو پتہ ہے۔ پاکستان کے آج حالات ایسے ہیں کہ قائد محترم نے 2 میں سے ایک فیصلہ کرنا تھا۔ ایک طرف میاں نواز شریف اور اس کی جماعت کی مقبولیت تھی، ہم اس کو بچا لیں یا یہ ڈوبتا ہوا پاکستان بچا لیں۔ جو آصف زرداری صاحب کی 5 سالہ دور سے لے کر پرویز مشرف کی 9 سالہ لوٹ مار تک، یہ 14 سالہ کا لٹا پھوٹا پاکستان جب ہمارے والے ہوا، کوئی سیاسی پارٹی کبھی عوامی مقبولیت کھونے کو تیار نہیں ہوتی، وہ بھی انیشل سٹیج پہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں 4 ماہ ہوئے ہیں، 5واں ماہ شروع ہے۔ انشاءاللہ تعالی قائد محترم کو جو ویژن ہے آپ دیکھ لیں کہ آج آپ کو نہیں، شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ ان عوام کو نظر آ رہا ہوگا، آج نظر آ رہا ہے جی، میں گزارش کرتا ہوں بجلی دیکھیں، گیس دیکھیں، میں گزارش کرتا ہوں نا، مہنگائی دیکھیں۔ ان 4-5 ماہ میں نے آپ سے گزارش پہلے کی کہ ایک طرف ہماری عوامی مقبولیت ہے، دوسری طرف وہ سخت فیصلے ہیں کہ جو سخت فیصلے کر کے اس وطن کو بچایا جا سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس کے آپ بہت بڑے چینل کے بہت بڑے ماشاءاللہ فیمس اینکر ہیں جوئی صاحب، کہ 60 سالوں میں جو قرضے پاکستان نے لیے، 5 سال میں زرداری حکومت نے اس سے ڈبل 2 گنا قرضے لے کر پاکستان کو دلدل میں پھنسایا۔ 2 دن میں اس میں 170% اضافہ ہو چکا ہے۔ میں گزارش آپ سے کرتا ہوں، پھر دیکھیں سرکل ڈیٹ بھی تو ہم نے ختم کیا آتے سال، اس سے پہلے 5 کروڑ روپیہ کی حکومت 2 بار ختم کر چکی تھی۔ بتائیے جی، آپ مطمئن ہیں حکومت سے؟ میں مطمئن ہوں، آپ مطمئن ہیں؟ اس لیے مطمئن ہے شیخ تو کون؟ شیخ اس کو ووٹ دی، نہیں اس کا دیکھیں، میری بات سنیں، اس کو ووٹ دی، جازی کو ووٹ دی، ٹھیک ہے۔ ہمارا کیا ہے،
बच्चे भूखे मार रहे हैं। ठीक है, मसला यह है कि जब तक ये शकील वाहन था ना, हमारे सारे मसले हल होते रहे। अब कोई मसला हल नहीं हो रहा। इसलिए कहता हूँ शेख रशीद। आप मुतमईन हैं? पूरी दुनिया मुतमईन नहीं, बढ़ती हुई इस महंगाई से, इस बेरोजगारी से। यूरोप मुतमईन नहीं है, पाकिस्तान का गरीब कैसे मुतमईन होगा? मुतमईन करने के लिए हुकूमतों को और आवाम को हुकूमतों का भी साथ देना पड़ता है। हमारे मुल्क में न टैक्स कल्चर है, ना यहाँ पर लोग सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं। एक गरीब के घर में अगर 1 साल के बाद एक बच्चा पैदा होता है तो पाकिस्तान वो गरीब मुल्क है जहाँ हर साल इसके घर एक बच्चा पैदा होता है, एक मसला पैदा होता है। सबसे बड़ा मसला आज का मसला दहशतगर्दी का मसला, बेरोजगारी का मसला, महंगाई का मसला, गैस का मसला। एक नवाज शरीफ और इतने सारे मसले मसाइल कैसे हल होंगे जब तक ये पूरी आवाम? यानी आपको 20 नवाज शरीफ चाहिए आपको मसले? 20 नवाज शरीफ नहीं, एक सलाहुद्दीन अय्यूबी था जिसने कुफर की दीवारों को गिरा दिया था और लर्जादारी हो गया था। आज अगर एक नवाज शरीफ भी चाहिए आप? मैं समझता हूँ कि अगर मुसलमानों में सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे ऐसे बंदे पैदा हो जाएं जो अटल फैसले करें और अवाम के लिए खास फैसले करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज ना कभी पाकिस्तान पर दबाव। ये बताइए, बिजली की कीमत से मुतमईन है आप? बिजली की कीमत से हम इसलिए मुतमईन नहीं है कि जो पहले मुशर्रफ दौर से बिजली के कॉन्ट्रैक्ट्स आते रहे, अब 5 साल में जो डैम की या जो नीलम प्रोजेक्ट इन्होंने अब ये शुरू किया है, अल्लाह करे ये नीलम प्रोजेक्ट शुरू हो जाए। सीएनजी बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सीएनजी बड़े बड़े लोगों ने जो गाड़ियों में अपनी सीएनजी लगाई हुई है उनको बंद कर दिया जाए और आवाम के चूल्हे अगर जल जाएं तो मैं कहता हूँ इसमें कोई कबाहत नहीं है। आप मुतमईन है जी? जी मैं तो मुतमईन भी हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ कि ये देखो, ये जो छोटे मसाइल हैं लोगों के, रोटी का मसला है, चीनी का मसला है, बिजली का मसला, इसको फौरी कम किया जाए। बाकी जो लोग हैं अमीर लोग हैं उन पर टैक्स लगाया जाए। लोग मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे घर में रोज जब ये बात होती है रोटी महंगी हो गई जी, मेरा नवाज शरीफ किधर है? नहीं होना चाहिए। रोटी का मसला कम होना चाहिए, चीनी मसला कम होना चाहिए, बिजली बंद होनी चाहिए, बिजली गैस जो सी है जो बिजली लोड शेडिंग बंद होनी चाहिए। लोड शेडिंग बंद, बिजली तो वैसे बंद है। जो देखे ना, ये गैस अगर बंद होगी, घरों के चूल्हे बंद होंगे, लाजिम अगर फिर लोग वोट नहीं देंगे। इसको रोका जाए, जो गैर कानूनी तौर फैक्ट्री चल रही इनको बंद किया जाए। सीएनजी की अगर गाड़ी बंद हो जाएगी तो क्या मसला है, वो फिर महंगाई हो जाएगी, महंगाई को रोका जाए जैसा भी है। अच्छा ये बताइएगा कि रावलपिंडी की क्यादत किसके पास है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है, इमरान खान साहब के पास है, शेख रशीद साहब के पास है। आपका मसला हल किसने करना है इस वक्त? जवेद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने आज रावलपिंडी के लोगों के सामने उनके मसाइलों को पूछा। मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वोट दिया था कि वो इस शहर के, इस मुल्क के काम करेंगे और इंशाअल्लाह मुझे ये उम्मीद है। आप यूं समझें कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई हुकूमत आई है उसके 15 दिन के बाद उनके स्कैंडल शुरू हो जाते हैं, उनके करप्शन के स्कैंडल शुरू हो जाते हैं। माशाअल्लाह आज 6 महीने हो गए हुकूमत को, अभी तक पाकिस्तान का कोई टीवी चैनल ये साबित नहीं कर सका कि किसी वजीर ने, किसी मशीर ने कोई करप्शन की हो। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लोग इसी तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अपने विजन के मुताबिक चलने दें तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त पाकिस्तान का होगा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अच्छा ये बताइएगा कि डॉलर की कीमत पे मुतमईन है आप? मैं ये समझता हूँ कि जो आपने गैस की बात की तो पाकिस्तान के अंदर मेरे भाई भी ये कह रहे थे कि लोगों की गाड़ियों के मसले बन जाएंगे, किरायों के मसले बन जाएंगे। मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के अंदर जो किराए पे बसें और वैगनें चल रही हैं वो किराया डीजल और पेट्रोल का लेते हैं और गैस भरवाते हैं। अल्लाह खुदारा मैं नवाज शरीफ को मुबारकबाद पेश करूंगा अगर वो ये गाड़ियों की गैस बंद कर दें और लोगों के घर के चूल्हे जलाएं और इंशाल्लाह इससे पाकिस्तान तरक्की करेगा। और मैं ये समझता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस सूबे के हर शहर, इस सूबे के हर मोहल्ले में एक शहर मोहब्बत बस के रहेगा। अच्छा ये बताइएगा अवान साहब, ये बताइएगा कि इस शहर की क़यादत किसके पास है? आपके पास है? देखिए ये अवाम गवाह है। जब हमारे पास क़यादत आज मुल्क में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, हमने तनाव नहीं छोड़ा। हमने वादा किया था हम जीते या हारे तो आपके साथ जिएंगे, आपके साथ मरेंगे। गवाह है हम आज भी इनके बीच में हैं, लेकिन हमारे पास पार्लिमानी
पार्लियामान में जाकर मसले उठाना शहर के नुमाइंदे का काम होता है। उनसे पूछें वो जो कस्में खाते थे वो आज 6 माह से किसी जनाजे में किसी खुशी गमी में किसी को नजर आए, 55 हो या 56 हो, वो सिर्फ वादे करके भाग गए। और इन गरीबों के मसाइल को मैं तो मीडिया आपसे मुखातब हूँ जावेद चौधरी साहब, मैं मीडिया से खुदारा अपील करता हूँ इनकी तरफ से कि खुदारा इतनी तो तफरीक न करें कि एक शख्स को आप जब मुझसे हार के जाए तब भी वो तनहा टेलीविजन पर बैठकर जो दुनिया का झूठ बोलना चाहे बोलता रहे, जिस शरीफ आदमी की पगड़ी उछालना चाहे उछालता रहे। मैं शायद मुझे जेब नहीं देता, इस शहर में 25 साल तक जिसने एमएनएशिप के रूप में 25 साल के इक़्तिदार हासिल किया, उसने 25 साल में मैं साबित करूंगा 25 अरब की जायदाद बनाई। हजारों कनार रकबे फतेह जंग में किन्होंने? शेख रशीद ने हजारों कनार रकबे। किसी जगह मुझे नजर नहीं आई। मैं गुजारिश करूं वो, क्योंकि कुछ सब जुडिशियल बातें हैं जो शायद मैं आपके सामने न करूं, सर कितने अरब की बताया आपने? मैंने कहा 25 अरब रुपया 25 सालों में। गुजारिश सुन लें, जो शख्स टेलीविजन पर बैठकर 5000 का सगार मुंह में देकर गरीब का नारा लगाए, 8 करोड़ का एक्सप्रेस वे पर बैरियर टोन का जो एक्सप्रेस वे पे बैरियर टोन का कौन सा है, मतलब नाम भी मुझे सही नहीं आता। ठीक है, आप बताइए। सुन ले, 8 करोड़ का घर 1.5 कनाल का जहाँ मौसूफ रहते हैं, अगर वो वहाँ न रहते हो, 1.5 कनाल के 8 करोड़ का घर शेख रशीद का ना हो, उस एक्सप्रेस वे पे जो बैरियर टाउन की कॉलोनी बनी है, तो खुदा की कसम सियासत का मैं शहर भी छोड़ दूंगा। मैं सबके सामने ये वादा करके जाता हूँ। लेकिन खुदारा आप टेलीविजन पर बैठकर किसी शख्स को सिर्फ और जो जबान वो इस्तेमाल करे, घर में बैठी, आज आपका जो टॉक शो है ना, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें पूछ रहे हैं, हम सब बैठकर इकट्ठे टीवी देखते हैं। वो जो शख्स ऐसी जबान इस्तेमाल करे कि जो अपनी बेटियों और बहनों के सामने बैठे हुए शख्स शर्मिंदा हो जाए कि मैंने ये चैनल लगाया क्यों था, तो आप मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है, मैं आज आपके इस चैनल से मैं चैलेंज करता हूँ, चैलेंज। अगर उस शख्स ने अरबों रुपए का नजायज असासे शेख रशीद ने नहीं बनाए, अगर उसने शहर की दौलत नहीं लूटी, अगर उसने जो कल तक 85 तक कौमी असेंबली का मेंबर बनने से पहले इन सड़कों पर पैदल मारा फिरता था, आज वो अरबों का मालिक नहीं है, तो मैं चैलेंज करता हूँ आपके टॉक शो में या किसी चौक चौराहे पर मुझसे मुनाजरा कर ले, मैं हाजिर हूँ। अगर आवाज साहब, मैंने यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ख्वाजा साहब ब्रेक पर जाने से पहले आपसे ये अर्ज करता चलूँ कि हमने शेख रशीद साहब को भी दावत दी थी कि वो अपने शहर में अपने हल्के में यहाँ पे तशरीफ लाएं और लोगों का सामना करें और अपना मौक़िफ़ बयान करें, लेकिन शेख रशीद साहब ने इनकार कर दिया था और उनका ये कहना था कि वो इतने छोटे छोटे किस्म के लोगों के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। इस कैमरे के जरिए शेख रशीद साहब, मैं आपसे मुखातब हूँ, आपके हल्के में खड़ा हूँ, आपके हल्के में खड़ा हूँ, आपको आना चाहिए था। एक छोटे से ब्रेक। छोटे लोग थे जिन्हें जमानतें सब करवाई 4 बार। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ख्वाजा साहब, वक्फे जाने से पहले अवान साहब ने यह दावा किया कि शेख रशीद साहब पे इन्होंने ये इल्जाम लगाया कि उन्होंने 25 साल में 25 अरब रुपए की जायदाद बनाई इस शहर में। और मैं वक्फे जाने से पहले आपसे अर्ज कर रहा था कि हमने शेख रशीद साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि वो आवाम में खड़े हों हमारे साथ, ताकि उनके शहर के लोग उनकी बात सुन सकें कि हुकूमत कहाँ कहाँ नाकाम हुई और कहाँ कहाँ वो लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। अवान साहब, आप अपने दावे पे कायम है? ये नहीं है कि आप इस कैमरे का इस्तेमाल करके, नाजायज इस्तेमाल करके घर बैठ जाएं? मैं ना सिर्फ जो चैलेंज किया उस पर कायम हूँ, इसके साथ ये भी गुजारिश कर दूं कि उन्होंने भाग जाना है जो टेलीविजन पर बैठ के ये दावे करें कि मैं ख्वाब देखें मैं अपोजिशन लीडर बन रहा हूँ, ऐसे ही जैसे बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े आए और अपनी गाड़ी पे होटल लगाने की तैयारी कर रहे हैं कि मैं तो अपोजिशन लीडर बन गया हूँ। ये इस तरह काम नहीं चलता। हम जो कहते हैं, हमने कायद मियां नवाज शरीफ की 29 साल से 29 ईयर हो गए मुझे, मैं उसी पार्टी का मेंबर जिसमें बना था। ये सुनते रसूल भी कब्र की साथी है और मुस्लिम लीग का फॉर्म भी कब्र का साथी है। और मोहम्मद जिस 7 मरले के घर से कौमी असेंबली का मेंबर बनकर गया था, आज भी उसी 5 नंबर गली के 7 मरले घर में रह रहा हूँ। कोई हरामखोरी हमने न की है, न किसी को हरामखोरी करने दी है। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ बार बार कि इतनी हिम्मत पैदा करें अपने अंदर कि जिस मीडिया पे भी जाएं, एक्सप्रेस पे जाएं, किसी चैनल पे जाएं, कम से कम किसी दूसरे को वहां बैठकर उनके झूठ को टोकने का मौका दें। अगर मैं क्यों आपसे बार बार, मैं मीडिया से क्यों शाकी हूँ, इसलिए कि आप किसी को भी, किसी आम आदमी को बिठाकर किसी की पगड़ी उछालने के लिए अकेला बिठा दें, वो जो दिल में आता है, जो मुंह में आता रहे कहता रहे। जो इवन आप देखें, मलिक साहब, आप भी तो यही काम कर रहे हैं ना सर, कैमरे पे आपने दावत दी है, आपने दावत दी उन्हें आने की। और वो छोटा लोग, अगर देखिए मैंने नहीं कहता, अगर वो छोटा लोग मुझे शामिल किया उन्होंने, तो बहमदुल्लाह मैं वही छोटा आदमी हूँ, नवाज शरीफ का वही छोटा सिपाही हूँ जिसने शेख रशीद की इस शहर से जमानतें जब्त करवाई। वो इस शहर से 4 बार जमानत जब्त हुई। दूसरी गुजारिश सुने, ये छोटे लोग हैं जो वोटें देते हैं, छोटे नहीं है,
یہ وہ بڑے سر کے تاج ہمارے جن کی ایک ایک پرچی مجھے 78,000 ووٹ انہوں نے دی, 78,000 ووٹ دی مجھے, یہ میرے سر کے تاج ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ بتائیے گا کہ عوام کے مسئلے کیسے حل کرنا ہے سر؟ ہم نے دعائیں کی, ہم نے مسجدوں میں جا کر نمازیں پڑھی اور نفل پڑھے, صرف اس لیے کہ وہ کرپشن, وہ جو پچھلی کرپٹ حکومت تھی, یا اللہ وہ جائے اور یہ حکومت آئے. جب یہ آئے ہم نے شکرانے کے نفل ادا کیے, لیکن ابھی تک ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے. ہماری یہ نمائندے یا کم از کم یہ نون کے ریپرزینٹیٹو ہیں, ہماری ان سے گزارش یہ ہے کم از کم جو ہمارے پاس وسائل ہیں, چاہے وہ بجلی کا ہے چاہے وہ گیس کا ہے, اس کی منصفانہ تقسیم کریں تو پھر بھی یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. صرف منصفانہ تقسیم کی جائے. گیس ہی کا مسئلہ اگر اٹھا لیا جائے, یہ اب کل سے یا کافی دنوں سے انہوں نے آنا شروع کر دیا ہے کہ گھروں میں گیس نہیں ہوگی, یہ مسئلہ ہوگا, یا گاڑیوں میں گیس نہیں ملے گی. اگر اس کو صرف منصفانہ تقسیم کر لیا جائے, اور وہ جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں وہ جو اس گیس کو سستی گیس استعمال کر رہے ہیں, اس پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اگر ختم کر دیا جائے تو گیس سی این جی کو بھی ملے گی, گھروں کو بھی ملے گی. ابھی میرے ایک بھائی نے یہاں پر کہا کہ بڑی گاڑیوں میں گیس نہیں ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن غریب ٹیکسی والا جو کہ بیچارہ 200 روپے کی گیس جلا کر اپنا گھر لے کے جاتا ہے, اگر اس کو پیٹرول ڈلوانا پڑ گیا تو یہ اس گورنمنٹ کو کیا پوری عوام کو سمجھ آ جائے گی. یہ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی تقسیم منصفانہ کی. آپ مائک ان کو دے دیجیے گا. اچھا یہ بتائیے گا, آپ سے بڑا اپنا یہ بتائیے گا کہ اگر فرض کیجئے گورنمنٹ کسی جگہ کنٹرول نہیں کر پاتی, وہ گیس کو کنٹرول نہیں کرتی, بجلی کو کنٹرول نہیں کرتی, لا اینڈ آرڈر کے ایشوز کو کنٹرول نہیں کرتی, مہنگائی کو کنٹرول نہیں کرتی, تو اس حکومت کا فیوچر کیا ہوگا, کیا مستقبل ہوگا؟ سر فیوچر تو یہ ہے, میرا نام اشر علیم ہے, میں آل پاکستان سی این جی ایسوسی ایشن سے ہوں. فیوچر تو یہ ہے کہ بہت جلدی ریزلٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی جس تیزی سے یہ گورنمنٹ کا گراف اوپر گیا تھا, ہم بھی اس کے سپورٹر ہیں اور تھے, لیکن ابھی اس وقت یہ گراف کافی تیزی سے نیچے آ رہا ہے. اور میاں صاحب کے ساتھ یہ پرابلم پہلے بھی آ چکی ہے, اور امید ہم کرتے ہیں کہ اب اس دفعہ ان کے مشیر ان کو صحیح مشورہ دیں گے اور وہ صحیح طرح سے یہ قدم کریں گے کہ وہ اپنا ٹینور پورا کر سکیں. ورنہ یہ گراف ایک دم نیچے آتا ہے اور سال 2 سال کے بعد پھر گورنمنٹ چینج ہونے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مسئلے کے تمام مسئلوں کے حل موجود ہیں. ہماری ذاتی طور پہ پراچا صاحب کی بھی, ملک صاحب سے بھی, باقی بھی گورنمنٹ کے الیکشن سے پہلے بھی ہماری ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی رہی ہیں اور ان کے پاس تمام مسائل کے حل دیے ہوئے ہیں. صرف یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کیسے ہونی ہے, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اور منصفانہ فیصلے کیسے کرنے ہیں. اس سارے کے اندر انیشیٹو لینے والی بات ہے. باقی مسئلے, ہر مسئلے کا حل موجود ہے. ہم نے بھی دیا ہوا ہے اپنے مسئلے کی حد تک, باقی مسئلے کی حد تک بھی دیا ہوا ہے. گیس کے مسئلے کی حد تک ہم نے بچپن سے کتابوں میں یہ پڑھا کہ پاکستان میں 300 سال کے ذخائر ہیں. وہ 300 سال کے ذخائر 3 سال میں ختم ہو گئے, ایسا نہیں ہے. یہ سب کو پتہ ہے, ملک صاحب گورنمنٹ میں رہے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ کون سے کنویں کہاں کہاں بند ہوئے ہیں, کس پہ کہاں کہاں پابندی لگی ہوئی ہے, کہاں کہاں کی گیس جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے, کہاں کہاں پہ سستی گیس کس وجہ سے دی جا رہی ہے. تو لہٰذا اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. میں سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا, ایک میری گزارش, میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ میرے بھائی نے کہا دیکھیں آج پوری قوم جانتی ہے 2 راستے. ایک راستہ یہ ہے کہ لوگوں کے معصوم بچے بغیر ناشتے کے اسکول جائیں, ان کے گھروں کے چولہے ہم بند کر دیں. آپ نے جو کہا کہ جو آپ خود گواہ ہیں اس بات کے کہ جو تیل کے کنویں بند تھے ان کے آدھی رگیں آپ کو خود اس بخوبی علم ہے کہ آج ہمارے دور میں 4 ماہ کے صرف دور میں ان کنوؤں پر دوبارہ کام شروع ہونے کے لیے ایک میکینزم بنایا ہے. اور میں اس کے بعد آپ سے گزارش کروں کہ آپ ایک بات کا مجھے جواب دے دیں. جتنی پبلک ٹرانسپورٹ چلتی ہے, میں کار والے کی بات نہیں کرتا, جتنی پبلک ٹرانسپورٹ چلتی ہے وہ سارے کے سارے, ابھی ایک بھائی نے بالکل درست کہا, وہ سارے کے سارے پوری قوم کو پتہ ہے کہ وہ پیٹرول کے پیسے لے کر وہ بسیز والے, سزوکی والے, ویگن والے کرایہ پیٹرول کا لیتے ہیں, ڈلواتے سی این جی ہیں. اب اگر اس قیمت پر 4 ماہ کی حکومت میں ایک طرف پوری قوم ہے, وہ بھوکی ننگی قوم جنہیں زرداری میں شرب لوٹ کر لے گئے, ان کے گھروں کے چولہے بند کر دیں یا 3 ماہ کے لیے سی این جی کی گیس بند کر دیں. بات نہیں ہے. ابھی ہم ادھر چوک پہ کھڑے ہیں, یہاں پہ سب سزوکیوں کا, ویگنوں کا اڈا ہے. اگر یہ گورنمنٹ ٹرانسپورٹر جو ہے پیٹرول کی کرایہ لے رہے ہیں تو یہ نون گورنمنٹ کی نااہلی ہے کہ وہ کنٹرول نہیں کر رہی, جبکہ ان کو پتہ ہے یہ سی این جی پہ چل رہے ہیں. یہ عوام میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. ہفتہ اتوار جب سی این جی بند ہوتی ہے تو روڈیں بالکل خالی ہوتی ہیں. ہم نے گورنمنٹ کو حل دیا ہے کہ صبح 9 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک سی این جی سیکٹر کو گیس سپلائی دی جائے تاکہ لوگ دفتر کی تیاری ناشتہ کر کے جائیں, رات کو جب آئیں تو ان کو بھی گیس اویلیبل ہو. اصل مسئلہ کیا ہے, ہمارا سیکٹر یا ڈومیسٹک سیکٹر
पूरे मुल्क की गैस का मुश्किल से 10% इस्तेमाल करता है। जो लोग ज्यादा गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, इलीगल बिजली बना रहे हैं, इलीगल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट पे पैसा लगा के इलेक्शन में उन्होंने पैसा लगा, हमने उनको वो सीएनजी उनको स्टेशन क्यों चोरी रोकना बंद की, चाहिए? वो नून के लोग थे, ये अखबार की उन्होंने भी हद नहीं तक छोड़ा। है। हम इस चीज से मैं आई विटनेस हूँ। हम इस बहस में नहीं करना चाह रहे, हमने हल देना चाह रहे हैं जो कि आवाम का इशू है। नहीं, मैं आपको नाम बता यहाँ दूं, पे हमने जावेद बिजली साहब चोर पकड़े, ये वो किसी जोक पार्टी से हों। है, ये जोक है। देखें, अगर सीएनजी बंद हो जाए, हमारा कारोबार को जहाँ नुकसान होगा, 5 लाख बेरोजगार होंगे, चलें वो एक अलग इशू है। ये बात नहीं समझ आ रही कि जिस शख्स ने घर में चूल्हा जलाना है तो उस पर उसने खाना पकाना है, तो खाना तो तभी पकेगा कि उसकी जेब में पैसे होंगे। अगर वो पैसे बाहर किराए की मद में दफ्तर और कारोबार जाते हुए और महंगी चीज खरीदते हुए जाया कर देता, वो खाना कैसे अच्छा, बनेगा? मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद यहीं से बात स्टार्ट करेंगे कि ये बताइएगा कि अगर फर्ज कीजिए कि हुकूमत वाकई ही इस तरह सीएनजी बंद कर देती है 3 महीनों के लिए, तो हुकूमत की क्या पोजीशन होगी, सियासी पोजीशन क्या होगी? क्या मुल्क में कहीं खुदा न खास्ता राइट्स तो शुरू नहीं हो जाएंगे? एक छोटे ब्रेक को, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। सर, जब दिसंबर में सीएनजी बंद हो जाएगी तो उसके बाद पोजीशन क्या होगी? क्या कहीं खुदा न खास्ता इस मुल्क में राइट्स तो शुरू नहीं हो जाएंगे? प्राइस साहब, क्या सूरत हाल होगी जब 3 महीने के लिए सीएनजी बंद होगी? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये यकीन ही नहीं है कि इतना बेवकूफ़ों वाला फैसला होगा कि लाखों लोग, करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाए, महंगाई हो जाए। लेकिन अब आ रहे चूंकि ऐसी बात, तो इस फैसले के पीछे अगर ऐसा हो गया तो 8 करोड़ लोग जो रोजाना किसी न किसी सूरत में किसी गाड़ी में सफर करते हैं, उनके जेब जो है वो महीने का खर्चा पूरी करने की पोजीशन में नहीं होंगे। दफ्तरों में और स्कूलों में बच्चे नहीं जा सकेंगे। और ये इशू क्या है? देखिए, 100 रुपए घर में बच्चों का राशन कहाँ से लेके आएगा? हमारा वो पका हुआ खाना कहाँ से लाएगा? आप तो अफोर्ड करते हैं भाई साहब, शायद इशू क्या है कि 100 रुपए गैस की 100 रुपए की कीमत में गैस खाद फैक्ट्रियों को दी जाती है, वो 1900 रुपए में बेचते हैं, उसमें कमीशन शामिल है, वो रोका जाए। एक सेकंड, मैंने आपकी बात को रोका नहीं है। 3 बार की आप गवर्नमेंट में नहीं है, मैं तो आवाम को पहुंचा रहा हूं। मैं आवाम का आदमी हूँ। दूसरी चीज ये कि जो लोग गैस से इलीगल बिजली बना रहे हैं, देखें, जो लोग गैस से इलीगल बिजली बना रहे हैं, वो गैस पूरे पाकिस्तान को मिलनी चाहिए कि उस बिजली का फायदा चंद लोगों की बजाय सब आवाम को होना चाहिए। इसी तरह अगर सीएनजी सेक्टर को गैस नहीं देते, न दें। अगर इन्होंने लोगों से सुननी है बातें, एहतजाज करना है, लोगों को घरों में बिठाना है, ये गवर्नमेंट का अपना फैसला है। हम तो ऐसे कारोबारी बरादरी, हम ऐसे घरों के चूल्हे जलाने, घरों के चूल्हे एक तरफ और एक तरफ गाड़ियों में, बड़ी बड़ी बसेस में, इस तरह लैंड क्रूजर्स में लगी है सीएनजी किटें। 29 साल आपको हो गए सियासत में, 16 साल हमारा गैस का तजर्बा है। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ कि मिनिस्टर पेट्रोलियम तमाम ताजिर तंजीमों के साथ, पब्लिक नुमाइंदों के साथ, एंकर के साथ बैठ जाएं। अगर वहाँ पे वो ये साबित कर दें कि गैस कम है और यह इस्तेमाल की वजह से गलत हो रही है, तो हम सीएनजी सेक्टर वॉलंटियर बंद करेंगे। आप भी जानते हैं हम वॉलंटियर बंद करेंगे। अच्छा, अब मसला क्या है? एतमाद है, नवाज शरीफ साहब पे हमें भी एतमाद है। 2 साल की कुर्बानी है। 2 साल में इंशाअल्लाह ये मुल्क 2 साल में लोग बचेंगे, घरों के चूल्हे बंद हो जाएंगे तो लोग बच जाएंगे। घरों के चूल्हे बंद कर दें। इन्होंने कहा जी हमने चोर पकड़े हैं, इन्होंने चोर पकड़े हैं, बिजली चोर पकड़े हैं, गैस चोर पकड़े हैं। कौन? जो 2000 की चोरी करता है, जो 3000 की चोरी करता है, जो अरबों रुपए की चोरी करते हैं या चोर थे। वहाँ आपने क्या किया? एक साबित करें, चोर बताइए, चोर आपने एक की निशानदेही कर दें। हमने सीएनजी स्टेशन बंद किए। सर एक मिनट, सर एक मिनट, मैं ना यहाँ सीएनजी की बात करना चाहता हूँ, ना मैं किसी और की बात करना। मैं चोरी की आपने कही या बिजली की बात की है? एक मिनट, अरबों रुपए की चोरी। अभी ये पीछे क्लासरा साहब ने बताया कि फलाने ने इतने अरब वहाँ पे दिए है, ये चोरी साहब ने कई दफा कहा इतने अरब रुपए की चोरी हुई है। आपने वहाँ पे क्या किया? एक साबित करें कि जब से आप आए हैं एक बड़े एक बड़े चोर को आपने पकड़ा और हैंग किया। हम सारे आपके साथ हैं। देखिए, जवाब दे। 3 माह की हुकूमत से 14 साल के फैला हुआ गंद, अगर आप कहें कि 3 माह की हुकूमत वो सारा कुछ समेट दे, इस मुल्क में कितना बड़ा मसला है दहशतगर्दी का, जो निसार अली खान की क्यादत में वजीर दाखिला जवाब ये दे, मुझे जवाब दें। सुन लेना, इस मुल्क में अदल की बहाली आई थी तो कायद मियां नाशिर ने जान जेरी पर रख के अदल बहाल किया था। इसी तरह आज वजीर दाखिला ने कायद की सरपरस्ती में अपनी जान की परवाह किए बगैर हमने इस मुल्क की दहशतगर्दी कराची से शुरू किया, जो कराची जो खून में नहाता था। आज अल्लाह के सीएनजी का जवाब दें, सीएनजी का जवाब लें, सीएनजी का जवाब लें। मैं आपको नाम गिनवाता हूँ जो सीएनजी स्टेशन से लेकर फैक्ट्रीज तक हमने चोरों की फैक्ट्री सील की। हमने ना, मैं प्रेसिडेंट से बैठे हैं, ये कह देंगे नहीं, कोई सीएनजी स्टेशन गैस चोरी बंद नहीं हुआ। गैस चोरी में फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, चीफ मिनिस्टर भी गए, आपका पिंडी शहर में, इधर चौक पे भी सीएनजी। अभी इशू जो है, अभी इशू ये है कि आप देखें जी, गवर्नमेंट आई, आप उनका मौकफ देखें। आपके एक वफाकी वजीर ने कहा कि तमाम सीएनजी वाले चोर हैं, उसको कोई अल्हाम हुआ है?
अभी गैस की शॉर्टेज नहीं है, किसी के घर में है, महीना पहले से नारा लगना शुरू हो गया कि सुबह गैस मिलेगी घरेलू सारिफ को, 3 महीने इसको बंद। भाई जब तकलीफ आएगी तो होगी। क्यों उन्होंने टारगेट लिया है, किसी से पैसे लिए कि पब्लिक और सीएनजी सेक्टर को दबाएं? वो कहे ना कि जी जब तकलीफ आएगी तो सबको करेंगे। अभी तो तकलीफ ही नहीं है। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दें कि ख्वाजा आसिफ साहब जो वफाकी वजीर है, जो अभी शादियां कर रहे हैं, उनको जातियात पे आएंगे भाई साहब, मैं आपकी जात पे आ जाऊंगा डायरेक्ट। नहीं, जातियात पे ना है, जातियात पे ना है, जातियात पे मत आए। मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, न करें साहब। मैं जब कहूँगा तो फिर आप शर्मिंदा हो जाएंगे। आप मेरी चाय के बारे में जातियात पे ना है, बात करें काय की। आपने गैस की बात की, गैस की बात करें। उन्होंने कहा सीएनजी सेक्टर में साबित किया, सीएनजी स्टेशन सील किए, जो डायरेक्ट चोरी करते थे उनके साथ महकमा मिला हुआ था, ये जो भी हालात थे, ये ना करें ना। ऐसा कोई भी नहीं हुआ। अगर है तो कल उसको इखबार में बात करता हूँ। ऐसा आप क्या करते हैं? हमारा सीएनजी चोरी बंद मैं चाहता हूँ जावेद साहब, इस प्रोग्राम के तवज्जो से हम ये चाहते हैं कि जो घरेलू सारिफ है, हम भी इस घर में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, रात को गैस देते हैं जी, हम इस शहर में रहते हैं, गैस 75 दफा गैस 100 रुपए पे बिकते हैं जी। आप न डलाएं। सीएनजी वाले क्या कह रहे हैं आप? एक से सीएनजी जिन दिनों में बंद होती है, जिन दिनों में बैन होती है, उन दिनों में रात को 12 बजे 1 बजे के बाद सीएनजी पंप के जो मालकान है और जो स्टाफ है, उनको 100 रुपए फालतू दे। कोई एक सीएनजी बताइए, कोई एक सीएनजी कोई बताइए। एक ऐसा बता दे जो नहीं देता, कोई एक बताए जो नहीं देता। जहाँ आपने 100 रुपए दिए, सर मैं कह रहा हूँ पिंडी में कमो बेश 20-30 हजार गाड़ी चल रही एक बताइए, है। कोई कोई एक एक बताइए। ऐसा पंप बता दे जो रात को नहीं देता। कोई एक मैं चैलेंज करता हूँ कोई एक पंप बताए ना, सीएनजी पंप का बताए। एक पंप, पिंडी का कोई एक पंप बता दे, कोई एक पंप जो रात को 12 बजे के बाद गैस नहीं देता। सारे चोर हैं, 50-50 रुपए इनकी औकात है, 100 रुपए औकात है। 100 रुपए फालतू दे, आपको गैस मिलेगी। 100 रुपए नहीं दे, 100 रुपए नहीं दे तो ये गैस नहीं दे। इनकी क्या औकात है? भाई और वक्फा ये बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं, एक ब्रेक ले, एक ख्वाजा एक छोटी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ख्वाजा वक्फे में जाने से पहले यहाँ पे रावलपिंडी के शहरी ने यह दावा किया कि रावलपिंडी के सीएनजी स्टेशन 100 रुपए लेके इलीगल गैस दे देते हैं जब गैस बंद होती है, लेकिन इसके बावजूद गाड़ियों में गैस डलवाई जाती है। आप किसी एक सीएनजी स्टेशन का नाम लीजिए। जावेद चौधरी साहब, मैंने मीडिया की विसाजत से, आपके टीवी चैनल की विसाजत से ओपन चैलेंज करता हूँ, ये मेरे साथ सिर्फ मैं अकेला नहीं खड़ा हुआ, कमो बेश 150 मेरे पिंडी के रहते हैं। सर कोई एक नाम तो लें। मैं कह रहा हूँ कोई एक नाम ऐसा बता दे जो नहीं देता। ये क्या बात है? हर सीएनजी पंप 50 रुपए 100 रुपए फालतू लेते हैं, जो उनके स्टाफ के होते हैं और वो देते हैं। और अगली बात आपको बता दूं, जो एनर्जी क्राइसिस आप बता रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस, ये मौजूदा गवर्नमेंट जिसने अभी तकरीबन 3 महीने हुए हैं, उन्होंने गवर्नमेंट संभाली है, जो 5 साल मुल्क को लूटते रहे हैं। एक दिन में 8 अरब रुपया रोज आना गैर कानूनी छपता था। नेब ने कहा कि डेली की मैं करता हूँ। आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मेरे ये भाई ने कहा कि सीएनजी पंप को जो है ना इजाजत दी जाए और आवाम को मुश्किलात दी जाए।